हाँ करिए मैडम, स्टार्ट कर दिया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, करिए स्टार्ट। Yes, good afternoon, one and all present over here. I are in-house training, and today's training is going to be conducted on the topic joyful learning of mathematics. Am I audible to you all properly? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Okay. So first of all, I would like to congratulate Ms. Deepa Pandey, who have taken the previous session, which was extremely wonderful session. And I hope कि आज का भी session जो है मैं up to level जो है लेकर के जा सकूं. So before I start, I would like to know from each of you that what is your definition of joyful learning? आप जो है joyful learning से क्या समझते हैं? Please reply in the chat box. Yes, I'm waiting. Please reply. According to you, what is joyful learning? Okay, Ashutosh sir has given reply learning without tension or without stress. Thank you sir for the reply. Anybody else? Okay, so joyful learning mathematics यहाँ पर है. Okay, one more reply. Learning with lots of new things. Thank you ma'am for your reply. अगर हम मैथमेटिक्स को हटा दें तो हम अगर हर एक सब्जेक्ट की बात करें, हर एक सब्जेक्ट में जो है आई थिंक लर्निंग जो है वो जॉयफुल होनी चाहिए. जॉयफुल लर्निंग तब होगी अकॉर्डिंग टू मी कि जब आप क्लास ले रहे हैं और हर बच्चा जो है फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको सुन रहा है, उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन है आपकी क्लास में, और ज्यादा कहूँ तो वो आपकी क्लास के लिए तो है ईगरली अगर वेट कर रहा है कि यस आज जो है हम साइंस की क्लास लेंगे, आज हम इंग्लिश की क्लास लेंगे, एंड द स्टूडेंट इज एक्साइटेड फॉर योर क्लास, देन आई कैन से कि यस the teaching learning process which we are conducting is joyful. Okay, so there's a quote, when we are doing a thing with likeness, it is an enjoyment. But when we are doing the same thing with the dislike, it is a punishment. And I think कि आप सब इस चीज को अग्री करते होंगे. अगर हम इस सेशन के कंटेक्स्ट में ही बात करें तो अगर आप इस करेंगे तो ऑफ कोर्स इट विल बी एन एंजॉयमेंट फॉर यू, बट अगर आप इस सेशन को डिसलाइक करेंगे तो ये जो है आपके लिए पनिशमेंट भी हो सकती है. एंड आई थिंक ये जो है हमारे सेशन के एंड में डिसाइड होगा कि आज का जो सेशन है वो एंजॉयमेंट है या पनिशमेंट है. Okay, now I would like to show you my definition of joyful learning. So joyful learning is thrilling and will be often natural and spontaneous. And if we talk about in the context of mathematics, specifically subject maths, I would say mathematical knowledge is culturally inherent and a part of life. It is a part of the traditional community knowledge which passes through interactions from generation to generation. Yes, we all agree to this कि मैथमेटिक्स जो है वो हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. हर जगह हर तरफ जो है मैथ्स पर हम कनेक्ट कर सकते हैं. हमारी डे टू डे लाइफ में हर फील्ड में जो है हमें मैथ्स की जो है नीड है. तो किस तरीके से हम जो है इसको कनेक्ट करें, किस तरीके से अपने मैथमेटिक्स को जॉयफुल बनाएं ताकि जो बच्चों के अंदर एक फोबिया है मैथ्स को लेकर के उसको जो है हम निकाल सकें. Now I would like to discuss a few points for which I am conducting this session. Why I am conducting this session? So this session is for analyze the present system of mathematics education at primary schools to identify the attitude of students toward mathematics, and at the end I would like to suggest a few strategies
strategies for making learning of mathematics joyful. See, children learn mathematics naturally through day-to-day experience. बच्चे जो है mathematics day टू डे एक्सपीरियंस से बच्चे का जो है आगे जाकर के हमें उनकी जो डे टू डे एक्सपीरियंसेस से जो लर्निंग होती है उसी को उनको कॉम्पिटेंसीज में जो है कन्वर्ट करके हेल्प करना है. These competencies are counting, measuring, designing, locating, playing, explaining. ठीक है, अगर बच्चा जो होता है जैसे मेरी डॉटर है वो अभी अबाउट 2 years old है, बट शी अंडरस्टैंड व्हाट मींस व्हाट मींस वन का मतलब वो समझती है, टू का मीनिंग वो समझती है. भाई आज था कि बेटा क्या चाहिए, शी यूज्ड टू से मम्मा चॉकलेट, एंड इफ आई से हाउ मेनी, शी यूज्ड टू मम्मा टू चॉकलेट. So I don't know where कि उसने कहाँ से सीखा, बट अपनी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस से उस टू को वो सीख पा रही है, समझ पा रही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू. She doesn't know the symbol of two, but she understands the meaning of two. So ये जो है experiences जो है बच्चा naturally अपने अराउंड सराउंडिंग से सीखता है, और उन्हीं की इस लर्निंग को हमें जो है फर्दर कुछ मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसीज में कन्वर्ट करना. Now, natural learning process. What is natural learning process? Natural learning process is that a student and children which learns from his nature, from the surrounding. And natural learning is always simple and long lasting. और उस simple long lasting knowledge को ही हमें उसको चीज में competencies में जो है ताकि वो complicated mathematical competencies gain कर सके, उसमें कन्वर्ट करना है, so that the child can use that competencies in it to discuss a few ground realities, or we can say so called notion कि subject mathematics से जुड़ा हुआ so called notion. I would like to focus a few points. Number one is mathematics is not interesting. Mathematics is not interesting and attractive to majority of children. Problem with faulty methodology and pedagogy. Number 3, failure to create meaningful and realistic situation in the classes. The last, learners see it as an artificial, meaningless subject. Being a maths teacher, it is very disappointing for me as rating नहीं है, बच्चा मैथ्स को नॉट इंटरेस्टिंग एंड नॉट अट्रैक्टिव समझ रहा है, एंड रीजन जो इसके पीछे जो प्रॉब्लम जो है इसका वो जा रहा है हमारी मेथोडोलॉजी pedagogy. That means there are the methodology which we are opting is somewhere faulty. We need to change that methodology. We need to change our pedagogy. They want to play games. वो फोन चलाने बाहर खेलने में ज्यादा इंटरेस्टेड है rather than their studies. So it is the urge of time that we need to up ourselves so that कुछ हम ऐसी strategies या अपनी teaching methodology में कुछ इस तरीके की changes ला सकें कि बच्चा जो है एटलीस्ट कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जो है जो वहाँ मोबाइल फोन में या गेम खेलने में लगा रहा है वो इंटरेस्ट को यहाँ अपनी स्टडीज में भी दिखा सके. एटलीस्ट वो मोटिवेशन या वो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है बच्चे की क्लास में हम डेवलप कर सकते. So to do that, what should be the would like to first? So vision for school mathematics. The first point is learn to enjoy mathematics rather than fear. बच्चा जो है मैथमेटिक्स को एंजॉय करे ना कि उससे डरे. Second point is mathematics is more than formulas and mechanical procedures. जो ये so called notion बना हुआ है कि mathematics is just about formulas.
and mechanical process. Think communication and work through mathematics. हमें इतना कर देना है कि बच्चा जो है मैथमेटिकली थिंक कर सके, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सके एंड वर्क कर सके थ्रू मैथमेटिक्स. बच्चे जो अक्सर क्लास में लिख लेते हैं बट कई बार वो बोल नहीं पाते, फॉर्मूलाज बोल नहीं पाते, सिंबल्स बोल नहीं पाते. तो हमें ये चीज जो है उनके अंदर डेवलप करनी है कि वो कम्युनिकेट करके जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है उसमें to use abstractions to perceive relationships, to see structures, to reason out things, to argue the truth or falsity of statements. Abstractions को concrete चीजों के साथ जो है हम उनको relate करा पाए, वो figure out कर पाए, वो चीजों को visualize कर पाए, वो जो statement है उसकी falsity या truthness को समझ पाए, ये चीजें जो है हमें लेकर के. So for that we have to opt some strategies and I would like to discuss a few strategies over here. So these strategies जो है एक एक करके मैं कुछ strategies जो मैंने यहाँ पर मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो explain करना चाहूंगी कि क्या strategies जो है हमें opt करना चाहिए ताकि बच्चा जो है मैथ्स को enjoy कर पाए ना कि उससे डरे. So first strategy is mathematical games, puzzles and stories. जो है बच्चों को mathematical games, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि हम डेली जाएं और कोई गेम या पजल या एक्टिविटी ही कराएं because हमें सिलेबस भी कराना है, but yes in a week at least one class can be conducted so that कि बच्चे को भी लगे कि जो रोज हमारा रूटीन डेली का है कि टीचर आए, टेक्स्ट बुक निकाला और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करा दिए, उससे कुछ बियॉन्ड, उससे कुछ हट के टीचर करा रहा है, जो हमारा नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड है उससे कुछ हम डिफरेंट करा रहे हैं ताकि बच्चा जो है बच्चे के अंदर आपकी क्लास को लेकर के कुछ इंटरेस्ट जो है डेवलप हो सके. तो मैथमेटिकल गेम की अगर हम बात करें तो वेरियस गेम्स हैं. वन इंस्टेंट ऑफ माय ओन क्लास जो है आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. A few time पहले की बात है जब हमारा सिलेबस ओवर हो गया था और क्लास 6 में मेरा लास्ट पीरियड था, उस दिन सैटरडे था एंड सीसीए पीरियड था वो, बट क्योंकि एग्जाम्स थे तो हमने उसमें नॉर्मल क्लासेस कंडक्ट कराई rather than सीसीए पीरियड. तो वहां जैसे ही मैं क्लास में एंटर होती, बच्चे नो मैम आज नहीं पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे मैम, सीसीए पीरियड होता था, प्लीज गेम दे दीजिए, प्लीज गेम दे दीजिए. मैंने कहा ओके आई inside the class what would you like to play. तो बच्चों ने वो क्लास 6 में आए हैं, वो शायद 4th 5th में खेल रहे हैं, कोई गेम है सिट स्टैंड के, इसमें एक बच्चा कमा देता है सिट स्टैंड एंड जो है सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक भी जो बच्चा पूरा प्रॉपर्ली सारे कमांड्स फॉलो करता है वो विनर हो जाता है. तो मैंने कहा ठीक है चलिए खेलिए. तो एक बच्चा आया और कमांड देना शुरू करता है और बच्चे उस कमांड को फॉलो कर रहे हैं और मैंने देखा कि जब मैं पढ़ा रही हूँ या जब मैं करा रही हूँ कुछ बच्चे तो ऐसे हमेशा जो किसी अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, बट ड्यूरिंग दैट गेम सब बच्चा फुल कंसंट्रेटेड है टुवर्ड्स द कमांड, सब सुने ध्यान से, सब उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, कोई किसी दूसरी एक्टिविटी में एंगेज नहीं है. और एक राउंड कंप्लीट होने के बाद जो विनर बना वो बहुत प्राउड फील कर रहा है, बच्चे जो वो ये विनर बन गए. तो मैंने कहा ठीक है नाउ नेक्स्ट राउंड जो है ये अब मैं कमांड दूंगी आपको, बट बीइंग अ मैथमेटिक्स टीचर मैं आपको जो कमांड दूंगी वो भी मैथमेटिकल होगी, ना कि आपकी सिस्टम की कमांड. तो बच्चे घर के अच्छा कि मैम क्या करेंगे करना अभी भी आपको सिस्टम ही है, लेकिन कमांड्स बदल ना. जब मैं कोई और नंबर बोलूंगी तब आप सेट करेंगे एंड जब मैं कोई इवन नंबर बोलूंगी आप स्टैंड. फिर मुझे हुआ कि हो सकता है कई बच्चे ऐसे हो जिनको कोई ऑड इवन याद ही हो. पहले मैंने उनको एक बार रिकैप्चुलेट कराया कि ओके दोस नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 या मल्टीपल ऑफ 2 वो इवन नंबर है 2 4 6 8 एंड जो नहीं डिविजिबल है 1 3 5 7 दीस आर ऑड नंबर्स. तो बच्चे ओके मैम याद आ गया. एंड देन फिर आई हैव गिवन द कमांड्स और इनकी मैंने नंबर्स बोले लाइक 3 5 8 9 एंड उनका सिस्टम चला. बट एट द एंड मुझे जो रियलाइज हुआ कि एटलीस्ट जो बच्चे भूल होंगे उन्हें एक तो जो है कहीं ना कहीं याद आया होगा ये कंसेप्ट, दूसरा बच्चों ने एंजॉय भी करा, फुल सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन भी मिला मुझे, और जो बच्चों को अगर किसी को डाउट भी था तो उसका डाउट चला गया होगा, चाहे किसी ने देखकर ही दूसरे बच्चे को सस्टेन किया होगा, लेकिन एट द एंड मुझे लगता है कि सबको ऑड इवन का कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया. तो
तो इसी की छोटी छोटी गेम जो है हम क्लासेस में कभी कभी करा सकते हैं. And if I talk about puzzles, अगर puzzle बात करें तो puzzles में भी कई सारे आप जो है अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग सब्जेक्ट्स में करा सकते हैं. मैं जो ये कराती हूँ, जो मैंने अपनी क्लास में कराया हुआ है, वो मैं शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर. पजल्स की मैंने एक मैथ बॉक्स, ठीक है, आप हम इसमें नंबर चार्ट ले सकते हैं एक, या फिर बोर्ड पर ही एक नंबर का बॉक्स बना लीजिए जिसमें आप 1 to 100 और जितने भी आपको लगता है नंबर्स रिक्वायर्ड है वो उस मैजिक बॉक्स में आप फिल कर दीजिए. तो आप नाम दीजिए मैथमेटिकल बॉक्स या मैजिक बॉक्स एनीथिंग, एंड फिर आप चिट्स बना लीजिए कुछ. उन चिट्स में आप कुछ क्वेश्चंस लिख सकते हैं डिपेंडिंग रहे हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंग करा रही थी. तो मैंने कराया था ये, वहां मैंने से कुछ पे क्वेश्चन लिख दिया कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 6, व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 3, इस तरीके से इसमें. एंड एक बच्चा आया और फिर वो और फिर जो आंसर है उसको वो मैजिक बॉक्स में जाकर के सर्कल करेगा या टिक करेगा. बट बिफोर डूइंग दैट मैंने कहा कि आपको ये मैजिक बॉक्स से आपका आंसर ऐसे ही नहीं मिलेगा, यू हैव टू पे फॉर इट. तो बच्चे पूछे अच्छा क्या पे करना पड़ेगा. मैंने कहा कि जो नंबर आपकी चिट में फ्लैश हो रहा है, जो भी नंबर आपको दिखेगा, पहले आपको उस नंबर से रिलेटेड कोई भी एक फैक्ट मुझे बताना होगा. एंड इफ दैट फैक्ट विल बी करेक्ट देन ओनली यू विल अलाउ टू use the magical box. Let us say कि कोई चिट निकला एंड क्वेश्चन इज कि फैक्टर ऑफ 6. तो आपको पहले 6 के बारे में एक फैक्ट बताना होगा. तो बच्चा जो है वो कह सकता है कि 6 वन इवन नंबर, 6 इज अ कंपोजिट नंबर, और जिसको पता ही बन वही कह सकता है कि 3 + 3 = 6, कोई 6 का मल्टीपल बता दे, कुछ भी जो भी आपको करेक्ट वहां से फैक्ट मिलेगा. एंड देन यू विल ओके अलाउ करेंगे कि अच्छा आप जाकर के फॉर्म करिए. तो ये भी एक्टिविटी जब मैंने कराई मुझे जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिला था बच्चों से. आप इसी तरीके से और भी कुछ करा सकते. So next is storytelling method. स्टोरी टेलिंग मेथड एक्चुअली हम जो है जनरली कहते हैं कि लैंग्वेजेस में जो है करानी चाहिए स्टोरी टेलिंग में, छोटी क्लासेस में कराना चाहिए, बट नो आई एम नॉट एग्री टू दिस. स्टोरी टेलिंग जो है आपकी भी सब्जेक्ट में, जैसे मैं मैथ्स में भी स्टोरी टेलिंग कराती हूँ और यहाँ पर एक स्टोरी जो है मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ. तो ये स्टोरी जो है फैक्टर्स, जो टॉपिक है फैक्टर्स, उसमें बेस्ड है. सो पहले मैं आउटकम डिस्कस करना चाहूंगी कि स्टोरी टेलिंग से क्या आउटकम्स होंगे. तो इससे जो है बच्चा विल नो द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर, inculcate the values of value sharing and confidence. So these are some a few outcomes related to this storytelling. So ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी जो है एक चाइल्ड की है whose name फैक्टर भीम. जैसे ही आप क्लास में भीम यूज करते हैं बच्चे जो है एक्साइटेड हो जाते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का जो है भीम एक फेवरेट कार्ड स्टोरी ने बनाई है जिसके थ्रू टुनटुन मौसी की जो है एक लड्डू की शॉप है. Now what happened one day, जो ये बच्चा है फैक्टर भीम got full marks and so he went to the shop and he said, I'm so happy that I got good marks. I want to eat 12 laddus today. कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे full marks हैं, I want to eat 12 laddus. So Mausi congratulated him, give him 12 laddus. मौसी कॉन्ग्रेचुलेट करके उसको 12 लड्डू है दे देती. ना भीम सोचता है कि इससे पहले कोई मेरा फ्रेंड आ जाए और मुझे ये शेयर करना पड़े, इससे पहले मैं खुद ही जल्दी से ये 12 की 12 लड्डू जो है वो मैं खा लेता हूँ. So now नंबर ऑफ पर्सन, यानी अभी सिर्फ एक ही बचा है भीम और उसको सारे के सारे 12 लड्डू मिल रहे हैं. So I can say 1 × 12 = 12.
Now what happened? When he was about to eat the laddus, his friend Chutki came and he thought he has to share equal laddus with her. उसकी फ्रेंड छुट्टी आ जाती है, सो भीम सोचता है कि ओके शी इज माय फ्रेंड, तो मुझे शेयर करना चाहिए लड्डूस को इक्वली. So he decided to distribute laddus among both of them equally. So now the number of persons are 2 and यहाँ पर number of persons 2, so each is getting 6 laddus. दोनों को 6 laddus मिल रहे हैं. So 2 into 6 is 12. Now then another friend Raju joined Bhim and Chutki. They become 3 now. अब जो है per number of persons 3 हो गए, and then भीम को वापस से उन 12 laddus को जो है क्या करना पड़ा, equally distribute करना पड़ा another 3, and this time all of them got 4 laddus. सभी को जो है 4 laddus मिलते हैं. So now number of persons 3 and laddus each were getting is 4. So 3 in 4 is 12. Now came their friend Jagu. अब उनका एक और friend जगू आ गया. अब नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए 4, और जब भीम ने अब लड्डू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए तो हर एक बच्चे को 3 लड्डू मिले. सो वी कैन से 4 into 3 is 12. At the end, the remaining friends also joined them. Now finally, Bhim shared all the 12 laddus among 6 of them. And what happened? Everybody got 2 laddus, which they relished a lot. 2 laddus. So उनको बहुत मजा आया, सबने enjoy करके laddus खाए. इस स्टोरी के बाद आप जो है फैक्टर से रिलेटेड कंसेप्ट बच्चों को दे सकते हैं, एंड हम उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर हमने 12 के कौन कौन से फैक्टर देखे. 1 2 3 4 6 एंड ऐसे हो चाहे किसी भी तरीके के, उन्हें शेयर करके खाना. So this was the story. And एक स्टोरी और जो है मैं शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर, जो कि मैंने बहुत पहले प्रीवियस स्कूल मैंने सुनाई थी, एंड बच्चे बहुत खुश हुए थे स्टोरी को सुन करके. तो वो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर कर के ऊपर बनाई थी. अब मैंने कहीं से पढ़ी थी, तो पढ़ाई है. नेक्स्ट जब मैंने क्लास में पढ़ा तो मेरे नेक्स्ट रिएक्शन बच्चे जब काफी कंफ्यूज थे प्रॉपर्टीज को लेके, कुछ तो नेम भी इसको याद नहीं थे, तो मैंने कहा ठीक है चलो आज हम एक स्टोरी जो है मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. और स्टोरी है, हो सकता है कि आपको जो टाइप्स को लेकर के कंफ्यूजन है, उनकी क्वालिटीज को प्रॉपर्टीज को लेकर के कंफ्यूजन है, वो जो है कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी. तो जो स्टोरी थी वो कुछ इस तरीके से थी कि एक पर्सन था जिसका नेम था क्वाड्रिलेटरल. वो ज्योमेट्री प्लैनेट पे रहते हैं, और क्योंकि वो दूसरे प्लैनेट पे थे तो उनके कुछ फीचर्स जो है हमसे डिफरेंट है. लाइक हमारे 2 hands and 2 legs होते हैं, उनके 4 hands और 2 legs होते हैं. उनके 4 hands को वहाँ साइड्स बोला जाता है और लेग को डायगोनल्स बोला जाता है. तो जो क्वाड्रिलेटरल है उसके 4 sides and 2 diagonals. क्वाड्रिलेटरल के 3 चिल्ड्रन है. क्वाड्रिलेटरल के 3 चिल्ड्रन है. वन इज पैरेललोग्राम, सेकंड इज trapezium, third is kite. Parallelogram, trapezium and kite. So these 3 were his children. So what क्या होता है कि तीनों ही quadrilateral के children हैं, तो उनके पास भी वही प्रॉपर्टीज होती है जो quadrilaterals के पास होते हैं. दैट इज उनके भी 4 sides और 2 diagonals होते हैं. पर स्टिल जैसे हम भाई बहन में जो है कुछ डिफरेंसेस होते हैं फीचर्स को लेके, क्वालिटीज को लेके, ऐसे ही उनमें भी कुछ डिफरेंसेस थी. वो सब एक से नहीं थे. हाँ ये जरूर था कि सबकी 4 sides और 2 legs थी. जैसे हम भाई बहन जो है हमारे में भी क्या होता कि सबकी वही 2 hands और 2 legs, बट फिर भी हम कुछ ना कुछ वे में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. तो इसी तरीके से वो भी आपस में कुछ तरीके से डिफरेंट. जो पैरेललोग्राम था उसकी जो ऑपोजिट साइड्स वो इक्वल एंड पैरेलल थी. जो काइट था, काइट की जो एडजेंट साइड्स वो आपस में इक्वल थी. एंड जो ट्रेपेजियम था उसमें उसका 1 pair ऑफ साइड जो था वो पैरेलल था. तो जो ट्रेपेजियम था वो अपनी ही दुनिया में रहता था, उसको किसी से लेना देना नहीं, किसी से कनेक्ट नहीं करता था इतना.
वो अपने आप ही अपने में रहे। काइट जो था उसको हमेशा ऊंचा ऊंचा रहना पसंद था, या आसमान में उड़ना पसंद था, तो वो वहां बिजी रहता था। नाउ जो पैरेललोग्राम है वो जो है अच्छा था, उसने आगे जाकर के शादी हुई और उसके 3 बच्चे हुए। और पैरेललोग्राम के जो 3 बच्चे थे वो है रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो ये तीनों जो थे बिल्कुल पैरेललोग्राम की सारी क्वालिटीज उनके अंदर थी, वो बिल्कुल अपने फादर जैसे थे, बिल्कुल पैरेललोग्राम के जैसे ही दिखते थे। जब वो बड़े हुए तो रोम्बस को धीरे धीरे ये परेशानी होने लगी कि यार ये तो सब एक जैसे दिखते हैं, मैं भी इन्हीं के जैसा दिख रहा हूँ, अब मुझे डिफरेंट दिखना है, मैं इनसे ज्यादा स्मार्ट दिखना चाहता हूँ। उसने क्या किया, वो अपना घर छोड़ के चला गया और उसने जाकर के तपस्या करी, भगवान की प्रार्थना करी उसने। और भगवान जो है खुश होकर के आते हैं और बोलते हैं मानो विश मांगो अपनी, कि क्या विश है तुम्हारी, क्यों जो है क्यों तुमने मुझे प्रे किया। तो उसने बोला अभी मेरी परेशानी है कि मैं बिल्कुल अपने फादर और अपने बाकी भाइयों के जैसे दिखता हूँ, मुझे कुछ डिफरेंट दिखना है, आप मुझे कुछ ऐसा विश वरदान दीजिए कि मैं इनसे डिफरेंट दिखूं। तो भगवान जी कहते हैं तथास्तु, और उसको जो है उसको सारी साइड्स जो है वो फुल कर देते हैं। पहले अपोजिट साइड इक्विवेलेंट पैरेलल थी, होने से पैरेललोग्राम खुश हुआ, स्क्वायर खुश हुआ, बट रेक्टेंगल जो था उसको फिर जलस फील होने लगती कि यार ये तो ज्यादा स्मार्ट है, मुझे भी अपनी लुक चेंज करना है। तो ही वेंट और फिर वो रह करता है, एंड देन फिर भगवान प्रकट होते हैं और फिर बोलते हैं भाई क्या विश चाहिए तुमको। तो वो कहता है कि मुझे भी इनसे डिफरेंट दिखना है, मुझे रोम्बस से भी ज्यादा अच्छा दिखना है, या मेरे को कुछ डिफरेंट क्वालिटीज आप दीजिए जो मैं रोम्बस से अलग हूँ। तो ओके, भगवान कहते हैं ठीक है तथास्तु। और फिर भगवान जो है उसको कहते हैं कि अब उसको तो सारी साइड इक्वल दे दी, इसकी अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल पैरेलल है, मैं इसका क्या करूं। तो वो कहते हैं ठीक है चलो मैं तुम्हें ऑल 4 एंगल्स जो है वो तुम्हें 90 डिग्री देता हूँ, ताकि तुम उनसे थोड़ा डिफरेंट दिखो, तुम उसी जैसी देखो, वो थोड़ा टेढ़े दिखते हैं। तो पैरेललोग्राम भी खुश, वो भी घर आता है, सबको नया लुक दिखाता है, फिर सब खुश। फिर स्क्वायर जो होता है उसके अंदर ऐसी कोई जेलस वाली, बट पैरेललोग्राम को कहीं ना कहीं होता है कि यार इन दोनों के पास तो एक्स्ट्रा क्वालिटीज आ गई, बट स्क्वायर तो अभी भी मेरे जैसा ही है, तो को ऐसा ना हो कि ये जो है इसको परेशान करे, तो मुझे इसके लिए प्रेरणा चाहिए। फिर वो के लिए प्रेरणा आते हैं, फिर वो वरदान देते हैं। और इस बार वो वरदान में क्या मांगता है, वो मांगता है कि आपने जो क्वालिटीज नंबर्स को दी, जो क्वालिटीज रेक्टेंगल को दी, वो सारी क्वालिटीज कंबाइंड मेरे बेटे स्क्वायर को दे दीजिए। एंड भगवान जो है फिर उसको वरदान देते हैं, कहते हैं तथास्तु। और स्क्वायर के पास फिर एंड सभी की पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल सबकी प्रॉपर्टीज जो है वो आ जाती हैं, एंड ही गिव्स द बेस्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली। तो ये स्टोरी जब मैंने सुनाई तो बच्चे बहुत खुश हुए, बड़ा इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने। और उसके बाद ये हुआ कि वो एटलीस्ट शेप्स नहीं भूले, कुछ बेसिक क्वालिटीज जो थी वो उन्हें याद रही, उसको वो नहीं भूली। तो आई होप आपने भी स्टोरी को एंजॉय किया होगा। नाउ नेक्स्ट इज रिक्रिएशन थ्रू मैथमेटिक्स। हम किस तरीके से रिक्रिएशन कर सकते हैं चीजों को लेकर के मैथमेटिक्स में कुछ, ताकि बच्चे जो है एंजॉय कर पाए। और कुछ एक्टिविटीज जो है इसके अंडर में मैंने यहाँ पर मेंशन की है, लाइक रोल प्ले। रोल प्ले जो है जनरली हम मानते हैं कि इंग्लिश और हिंदी या सब्जेक्ट लैंग्वेज का पार्ट है, मैथमेटिक्स का नहीं, बट हम मैथमेटिक्स में भी रोल प्ले जो है कर सकते हैं। जनरली मैंने जो देखा है जब व्हेन आई वाज स्टूडेंट, कि जब भी इस तरीके वाले चैप्टर्स होते थे इंग्लिश में जिसमें कि डायलॉग डिलीवरी होती थी, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते थे, या हिंदी में अलग अलग पात्र होते थे और वो अपने डायलॉग्स जो है बोलने होते थे, तो बच्चे बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करते थे कि हम ये कैरेक्टर बनेंगे, हम ये कैरेक्टर बनेंगे, हम इसका डायलॉग बोलेंगे। तो ऑब्वियसली हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि रोल प्ले एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है बच्चों के अंदर जो है इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, उनको एक्टिवली एंगेज करने के लिए। सो रोल प्ले के अंदर जो है कुछ एक्टिविटी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक पिक्चर है जहाँ पर बच्चे जो है डिफरेंट शेप्स लेकर के खड़े हैं।
ये एक्टिविटी मेरे किसी कलीग के जो है किसी कलीग के स्कूल में कराया गया था, वहां से ये पिक्चर ली गई है। इस एक्टिविटी को नेम दिया गया शेप परेड। शेप परेड, इसमें बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट शेप जो है अपने आप को एक कटआउट के डिफरेंट शेप में प्रेजेंट करना और एटलीस्ट एक फैक्ट बताना था उस शेप के बारे में। एंड शी टोल्ड मी कि बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन था और सब बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था और बहुत अच्छा ये एक्टिविटी कंडक्ट। तो ये जो है 2D शेप्स है, तो इसको हम प्राइमरी में करा सकते हैं। सेकेंडरी में 3D शेप्स आ जाती है, हम वहां पर भी रोल प्ले करा सकते हैं। एक रोल प्ले जो मैंने कराया था, आई वुड लाइक टू शेयर दैट आल्सो। ये मैंने सॉलिड शेप्स का कराया था, जैसे ये यहाँ पर 2D शेप्स का कराया है, मैंने सॉलिड शेप्स का कराया था, क्यूब, क्यूबॉइड एंड ये सब का, जिसमें बच्चे जो है एक कटआउट पहना हुआ था और फिर उसके जो वेरियस लाइक प्रॉपर्टीज जो थी वो बच्चे किसी राइमिंग की तरह उसको बोल रहा था, एक कहानी की तरह बोल रहा है। बाकी बच्चों को जो है वो गेस करना था कि कौन से शेप के बारे में वो बता रहा है या वो कौन सा शेप है। अच्छा, ओके, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स अगर हिंदी में किसी को पता होगी तो क्यूब को क्या कहते हैं? क्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं? वो मेरे द्वारा जो आपका हुआ है। Anybody knows, please reply. क्यूब को क्या कहते हैं? प्लीज रिप्लाई हिंदी में। क्यूबॉइड, नो रिप्लाईज येट। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, किसी को नहीं पता, सब इंग्लिश में बड़े हुए हैं। 27.5 को 28 कर दो। ओके, सो लेट मी टेल यू, क्यूब को जो है हिंदी में हम घन कहते हैं। तो व्हाट इज घन? अब क्यूब इज घन। सो अब तो मैंने इंग्लिश में बता दिया, क्यूब सबने पढ़ा ही होगा स्कूल डेज में। आप मुझे बता सकते हैं उसमें नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं, फेसेस कितने होते हैं? Please write in the chat box. You can denote E for edges, F for faces, and B for vertices. Cube में number of edges, vertices, and faces. No replies yet. क्या समझूं मैं इसको कि आप लोगों ने किसी ने क्यूब नहीं पढ़ा हुआ है? बताइए। सबने पढ़ा पर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। ओके, बबीता मैम, थैंक यू। एज 12, ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। एज 12, वर्टिसेस एंड स्पेसेस भी प्लीज रिप्लाई कीजिए। क्यूब में कितने? 6 फेस। ओके, करेक्ट। एंड वर्टिसेस, हाँ बिल्कुल पढ़ा है तो बढ़िया है। ओके, बबीता मैम ने पढ़ा है क्यों, बाकी किसी ने नहीं पढ़ा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। ओके, 8 vertices, थैंक यू मैम। Yes, so there are 12 edges, 6 faces and 8 vertices are there in. तो हिंदी में घन कहते हैं इसको, इसी तरीके से स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो जो बचा था उसने कुछ इसी तरीके से पहेली बोली थी, अभी मुझे बहुत अच्छा याद नहीं है। उसने कहा था कि 6 है फलक मेरे, देखने में लगता हूँ वर्गाकार, 12 किनारे हैं और 8 है शीर्ष मेरे, तो बताओ बच्चों मेरा नाम। इसी तरीके से क्यूबॉइड वाले बच्चे भी कुछ अपना जो है बनाया था, ऐसे ही सबने, और बहुत अच्छी सी एक्टिविटी जो है हमने कंडक्ट कराई। So this can be used. Now next. Develop realistic and life-relating problem solving. कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी जो है जिनको हम बच्चों को जिसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ चीजें हम क्लासरूम के अंदर ही कंडक्ट करा सकते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, बच्चे जो है मेजरिंग टेप के साथ नीचे फ्लोर को मेजर कर रहे हैं। तो जब हम मेजरमेंट का कंसेप्ट देते हैं, हम बच्चों को क्लासरूम में जो चीजें अवेलेबल है, लाइक
ज्योमेट्री बॉक्स, उनका लंच बॉक्स, इवन द डेस्क, उन सब का मेजरमेंट करने के लिए कह सकते हैं। हम उन्हें एक मेजरिंग टेप प्रोवाइड करके और उन्हें मेजर करने के लिए कह सकते हैं। इससे क्या होगा, वो कनेक्ट कर पाएंगे कि जो वो चीज पढ़ रहे हैं उसको वो अपने रियल लाइफ में देख पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको जो है रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ा सकते हैं। सो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको देना चाहूंगी, एंड ये जो एक्टिविटी है इसका नेम टेस्ट द रेनबो, और ये एक्टिविटी जो है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड है। एक पिक्चर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, प्लीज बताइए इस पिक्चर में जो ये आपको कलरफुल दिखाइए क्या चीज है। जिनके बच्चे होंगे वो जरूर पहचानते होंगे, नहीं भी होंगे वो भी पहचानते होंगे। प्लीज रिप्लाई, क्या है ये? प्लीज रिप्लाई, पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं? यस, थैंक यू मैम। यस, आप जो ये देख रहे हैं पिक्चर में कैडबरी जेम्स है। भाई क्या बात है, आप लोग खा नहीं रहे, अपने बच्चों को नहीं खिला रहे, कोई जवाब नहीं रहा। तो ये कैडबरी जेम्स है जो बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं, इवन बच्चे हैं तो वो भी खाते हैं। आप इसके यूज से रेशियो एंड प्रपोर्शन का कंसेप्ट जो है बच्चों को समझा सकते हैं। लाइक आप ये लेकर के गए और रख दिया, और पहले आप बच्चों को जनरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइक कितने जेम्स जो है इसमें है, येलो, हाउ मेनी ब्लू, एंड देन यू कैन टोल्ड कि हम जो है कैसे रेशियो फाइंडिंग के लिए कह सकते हैं कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेड जेम्स टू द ग्रीन जेम्स, येलो इज टू ब्लू, ग्रीन इज टू टोटल, और वेरियस तरीके से। आप इनके अलावा और भी कोई चीज यूज कर सकते हैं, और इस टॉपिक को जो है हमको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए पढ़ा सकते हैं। Now next is meaningful and life-oriented mathematics. कि why do we need this? Why do we need this? Because it is shift from rote to learning by, कि इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते कि जब बच्चा जो है कुछ करके और फिर सीखता है, कुछ खुद से करता है और फिर सीखता है, तो वो जो है वो उस लर्निंग को थ्रू आउट द लाइफ याद रखता है। सिर्फ बताने से, लाइक हम सिंपल अगर अपनी डे टू डे लाइफ में बात करें, पर साइकिलिंग है या ड्राइविंग है, अगर कोई थियोरेटिकली हमें बता देगा कि ऐसे ऐसे बैठना है, पेडल करना है और साइकिल चलेगी, वो तब तक नहीं आएगा जब तक हम खुद जो है बैठेंगे नहीं साइकिल पे, पेडल नहीं करेंगे, तब तक हम साइकिलिंग नहीं सीखेंगे। इसी तरीके से ड्राइविंग में भी हम कितनी ही क्लासेस ले लें और हमें कोई सिखा दे कि अच्छा ये गियर है, यहाँ से आपको कैसे करना है, पर जब तक आप खुद नहीं करें तब जो है उस पर कमांड नहीं कर पाएंगे। So there is an example of linking nature with mathematics, किस तरीके से हम नेचर को जो है मैथमेटिक्स के साथ लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर शेप्स और पैटर्न्स का जो है बहुत अच्छा यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है। आप देख रहे हैं एक शेल का पिक्चर दिया हुआ है। जब हम बच्चों को शेप्स, पैटर्न, सिमेट्री जैसी चीजें पढ़ाते हैं तो वहाँ हम कर सकते हैं कि एक दिन बच्चों को हम ग्राउंड में ले जाए और बच्चों को बोले कि जाओ अपने आसपास जो भी सिमेट्रिकल थिंग्स आपको दिख रही हैं, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, वो कलेक्ट करके लाओ। और ऑफ कोर्स बच्चे पूरी मेहनत करेंगे, ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उनको, ग्रुप में ये काम अलॉट कर दीजिए, बच्चे सब जाएंगे और कुछ ना कुछ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके लेके आएंगे। कलेक्टिंग के बाद जो है आप क्या करिए, एक तो ये हो गया कि बच्चे सिमेट्रिकल ले आया या शेप के बेस पे कुछ भी ऑब्जेक्ट्स ले आए, उनको फिर एक जगह कलेक्ट करवा के रख दीजिए। जितने भी सारे आए हैं वो जो है सारे ऑब्जेक्ट्स जो है एक जगह रखवा दीजिए, एंड देन फिर उसको एक नई एक्टिविटी करा सकते हैं। आप बच्चों को बोल सकते हैं कि आपने ये जितनी चीजें यहाँ रखी हैं उन्हें ग्रुप्स में अलॉट करिए कि इनको जो है आप क्लासिफाई करिए डिपेंडिंग ऑन सम सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस। आप चाहे तो सिमिलैरिटी के ऊपर इसको क्लासिफाई करें या डिफरेंसेस के ऊपर इनको कैटेगराइज अलग अलग ग्रुप में बांटिए। बांटने के बाद हो सकता है किसी बच्चे ने कलर के बेस पे बांटा हो, किसी ने साइज के बेस पे कि अच्छा ये सारे छोटे हैं, ये सारे बड़े हैं, या और भी कुछ डिफरेंट बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीजें उस टाइम पर आती है। तो इस तरीके की एक्टिविटी खाते हैं तो भी बहुत सारी चीजें वो आपको बच्चों में से मिलेगी जो बच्चे निकल कर लाएंगे कि अच्छा ये चीजें हैं, इस बेस पर जो है क्लासिफाई किया, तो वहां से आप वो बहुत सारी चीजें और सीख सकते। और इसका एक और एग्जाम्पल जो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये है मैथमेटिकल पार्क।
आप राइट हैंड साइड पर पिक्चर देख पा रहे हैं, ये मैथमेटिकल पार्क है, ये प्रोजेक्ट है जो किसी ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ने ही बनाया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंट शेप्स का यूज करते हुए, 2D शेप का यूज करते हुए, 3D शेप्स का यूज करते हुए ये पार्क जो है बनाया है बच्चे ने। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारी जो है क्यूबॉइड का यूज करते हुए बच्चे ने जो है इसको डेवलप किया है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो है हम करा सकते हैं अपनी लर्निंग को जो है जॉयफुल बनाने की। नाउ नेक्स्ट जो है, अब अगर मैं सेकेंडरी क्लास की बात करूं तो यहाँ पर जो है टॉपिक है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के लिए एक एक्टिविटी है जो जिसमें मैं आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहूंगी, so please do participate in this activity। यहाँ पर आप जो है एक क्लॉक देख पा रहे हैं और इसमें से नंबर्स मिसिंग है। ये नंबर्स जो है आपको भरने हैं और ये नॉर्मल जो 1 2 3 4 जो आपको 12 होता है वो नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ दैट नंबर्स आप इसको स्क्वायर रूट से भरना, और स्क्वायर रूट ऐसे होने चाहिए कि वो एक्चुअल टाइम को रिप्रेजेंट करे। सो आपको रिप्लाई करना है मुझे कि आप इन प्लेस ऑफ 12, 3, 6 and 9, ओके, 12, 3, 6 and 9 की प्लेस पर क्या वैल्यूज पुट अप करेंगे। प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। इन प्लेस ऑफ 12, 3, 6 and 9 आपको स्क्वायर रूट्स में लिखना है वो वैल्यूज। आप क्या वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर? I'm waiting for your responses. Please reply. 12, 3, 6 and 9 स्क्वायर रूट्स में आपको लिखना है। No replies yet. क्या लिखते सब तब 0 0 0 क्यों? पहले तो मैंने उदाहरण लिखिए, नंबर यहाँ पे अच्छा जितना है ये लिखो, खान का जितना ही होगा। ये इतना तो नहीं है फिर तो अलग लिखा हुआ है 36 39। ओके चलिए, अगर आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, मे बी आई डोंट नो, आप एक्टिविटी समझ नहीं रहे हैं, ये 38 मैं जो है आपका ठीक है, लिख लीजिए। आंसर दिखा रही हूँ। तो ये जो क्लॉक है ये स्क्वायर क्लॉक है। जो मैंने आपको पूछा कि 12 की जगह पर क्या है, 3 की जगह पर 6 की, तो नाउ यू कैन सी कि 12 की जगह पर जो है √144, और 3 की जगह पे √9, 6 की जगह पे √36, 9 की जगह √81 और बाकी जब उसके जो नंबर्स हैं उसकी जगह पर भी। ओके, थैंक यू दीपक सर फॉर द रिप्लाई। सो इसी तरीके से जो है आप बाकी नंबर्स को भी है एक्चुअल नंबर्स ना दे करके हम उनको स्क्वायर रूट में जो है दे रहे हैं। ये एक्टिविटी हम क्यूब के कंटेक्स्ट में भी करा सकते हैं। सो उनकी तो ड्यूटी है शायद ना। Now the next activity is of the topic algebra. अलजेब्रा हम कराने लगते हैं बच्चों को जब तक हम क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में हैं और हम उनको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब कुछ करा रहे होते हैं, तब तक बच्चा कनेक्टेड फील करता है बिकॉज उसको वो अपनी रियल लाइफ से जो है कनेक्ट कर पा रहा है। बट जैसे जैसे जो है हम आगे क्लासेस हायर क्लासेस में जा रहे हैं और अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ये सब टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होने लगते हैं, तो बच्चा जो है अपने आप को लेफ्ट आउट फील करने लगता है वो, क्योंकि कनेक्ट नहीं कर पाता है इन टॉपिक्स को अपनी रियल लाइफ के साथ। उसको थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है क्योंकि वो अपने आसपास में इस चीज को ऑब्जर्व कर पाता है, देख नहीं पा रहा है इस वजह से। तो अलजेब्रा को जो है आप अगर बता रहे हैं बच्चों को, तो कुछ आप रियल लाइफ जो है एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पिक्चर जो है आप लोग देखिए प्लीज, और पिक्चर में कौन सी चीजें या कौन से ऑब्जेक्ट्स जो है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कौन से वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट यू हैव टू रिप्लाई। प्लीज रिप्लाई इस पिक्चर में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कौन से वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लीज रिप्लाई।
Please reply. ये जो पिक आपको दिख रही है इसमें आपको कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स बताने हैं. Yes, Deepak sir has replied. Constant is bridge and variable is boat. Very good sir. Very good sir. Very good reply. और कुछ भी है जो इसमें आपको कांस्टेंट दिख रहा है या वेरिएबल दिख रहा है? Yes, please reply. Okay, so constant जो है कौन? Real constant, tourist variable. Okay, thank you for your replies. Yes, railway track जो है that is constant. ये जो bridge है that is constant. बोट जो है because बोट जो है मूव कर रही है यहाँ से वहाँ डॉट कर रही है पानी के so it is variable. And जो ट्रेन है वो भी क्योंकि मूव कर रही है वो भी वेरिएबल है. So इस तरीके से हम और पिक्चर दिखा करके like हम constant width of track. Okay, width of track जो है अमोल सर ने रिप्लाई किया है constant है. Thank you sir. तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर बच्चों को और भी डिफरेंट पिक्चर्स के थ्रू लाइक व्हीकल्स जो रोड पर चलते हैं उनकी भी पिक्चर दिखा करके वहां से बच्चों को कांस्टेंट वेरिएबल पूछ सकते हैं कि जो भी मूविंग व्हीकल्स है दे प्ले द रोल ऑफ वेरिएबल एंड जो बिल्डिंग ट्रीज और ये जितने भी आसपास ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे जो है वो कांस्टेंट्स का रोल. Now please everyone please pay attention. ये एक्टिविटीज जो है आप लोगों के लिए है. इस एक्टिविटीज शूटिंग प्रॉब्लम. इस एक्टिविटी का नेम है शूटिंग प्रॉब्लम. प्लीज आई वांट एवरीवन कि आप जो है इस एक्टिविटी को सुने एंड प्लीज रिप्लाई. सो ये जो है केस क्वेश्चन है. So the case is like let there are 100 persons labeled as 1, 3, 99, so on 9900 standing in a circle. Person 1 has a gun. He shoots person 2. Of course, he dies and the gun transferred to person 3. He shoots person 4 and gun transferred to person 5. The process goes on repeating in a cyclic order. Who will be the last to survive? ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इस एक्टिविटी जो है आपके लिए इजी कर देती हूँ. इंस्टेड ऑफ 100 पर्सन्स यू हैव टू कंसीडर 5 पर्सन्स, ओनली 5 पर्सन्स. ठीक है, सेम प्रोसीजर है. फर्स्ट पर्सन के पास गन है और वो शूट कर रहा है पर्सन 2 को. पर्सन हो गया, गन ट्रांसफर हो गया 3 को. और इसी तरीके से जब ये एक्टिविटी चलेगी साइक्लिक मैनर में तो उन 5 पर्सन्स में से कौन सा एक पर्सन जो होगा वो लास्ट तक सर्वाइव करेगा. Okay, Amol sir has replied person 1. I want all of you to please reply. Please reply. Who will be the last survivor? बताइए. Person 1, 2, 3, 4, 5 में से कौन person है वो लास्ट तक सर्वाइव करेगा? बबीता मैम. Okay, first person. अभी सिर्फ 2 टीचर्स रिप्लाई किया है. आई वांट एवरीवन प्लीज रिप्लाई. अनिल सर. ओके, 1. और कोई जिनका 1 के अलावा कोई आंसर हो? वन अगेन 1. Bharati sir, 1. Okay. Question is कि there are 5 people, 5 persons. ठीक है, person 1 के पास एक गन है and वो person 2 को शूट कर दे रहा है. Person 2 die. अब 5 अब गन जो पास हो जाएगी 3 को. इसी तरीके से ये जो ऑर्डर है ये रिपीट साइक्लिक ऑर्डर में चलता रहेगा. लास्ट में कौन बचेगा that you have to reply. Everyone is replying person 1.
that person 1 will survive. वन क्यों बचेगा? Is there anybody जिसका आंसर person 1 से कुछ रिपीटेड है डिफरेंट तो है? फिर तो कैसे बचेगा? ओके, मारुति सर एक साइकिल पर्सन कम लेते 3 तो वन पे आ चेंज, जाएगा आंसर वापस। चेंज कर दिया इन्होंने अपना। सपना मैम ने भी चेंज किया, पर्सन 3 ओके। सलीम सर पर्सन 3 ओके। उत्तम सर पर्सन 3 ओके ओके। नाउ you are getting the right answer. Thank you all, thank you for your responses. So let's see. So ये जो प्रॉब्लम है ये जॉयफुल मैथ ली है मैंने, और इस प्रॉब्लम का एक्चुअली नेम जो है जोसेफिन प्रॉब्लम। There are 5 persons, ठीक है? There's cyclic order में खड़े हैं 1 2 3 4 5. Now what happened? 1 ने शूट किया 2 को, और 2 जो है वो खत्म। अब गन जो है वो 3 के पास ऑन हो गई है। Now 3 will shoot person 4. 3 जो है पर्सन 4 को शूट करेगा, और गन जो है वो पास हो गई है पर्सन 5 के पास। Now what will person 5 do? Person 5 will shoot person 1. Person 5 जो है पर्सन 1 को शूट करेगा, और गन जो है पास हो गई पर्सन 3 के पास। Now पर्सन 3 जो है, ठीक है, पर्सन 5 गन passes to person 3. Now पर्सन 3 will shoot पर्सन 5. पर्सन 3 जो है वो पर्सन 5 को शूट करेगा, और एट द लास्ट पर्सन 3 विल सर्वाइव। पर्सन 3 जो है वो सर्वाइव करेगा। तो ये जो एक्टिविटी जो मैंने आपको कराई, ये जो है ये भी एक अलजेब्रिक ही है, अलजेब्रिक कंसेप्ट की एक्टिविटी है, जिसमें हम n को नंबर ऑफ पर्संस ले सकते हैं, एंड चेंजिंग द वैल्यू ऑफ n वी विल गेट डिफरेंट आंसर्स। और इससे क्या होगा, अलग अलग जब हम आंसर्स हमें मिलेगा तो उससे हम एक जनरलाइज फॉर्म जो है वो बच्चों को क्रिएट करना, यानी कि फॉर्मूला लिखना जो हम सिखाते हैं यूजिंग एल्जेब्रा, उसका कंसेप्ट हम दे सकते हैं। जैसे हम जितने फॉर्मूलाज बोलते हैं, एरिया का, वॉल्यूम का, या जो भी उसमें क्या है जो हम यूज कर रहे हैं, बी या जो भी, वो सब क्या है, वेरिएबल है, वो भी क्या है, अलजेब्रिक का एक फॉर्म। ये 2 बच्चे से हैं शायद, आयुष। तो नेक्स्ट इज ब्रिंगिंग म्यूजिक इन क्लासरूम। तो दिस इज ये भी जो है एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ब्रिंगिंग म्यूजिक इन क्लासरूम। ब्रिंगिंग म्यूजिक इन क्लासरूम का ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी हमने क्लास में जाके और म्यूजिक पार्ट कर देनी है और बच्चे भी एंजॉय और आप भी एंजॉय, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें जो है आपने म्यूजिक को म्यूजिक या मैं बोलूँ कि राइमिंग के थ्रू बच्चों को फॉर्मूलाज, कंसेप्ट्स जो है लर्न करा सकते हैं। For example, if I would take an example like profit and loss का मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगी, जिसको हमने कुछ राइमिंग के थ्रू बच्चों को सॉन्ग के थ्रू देने की कोशिश की थी, एंड एटलीस्ट शायद 2 लाइन्स मुझे याद होगी। ये सारा जमाना है प्रॉफिट का दीवाना, अगर लॉस हो जाए तो बिल्कुल ना घबराना। इस तरीके से करके जो है आप राइम्स का यूज करते हुए भी कुछ चीजें बच्चों को सिखा सकते हैं, अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और आप सबको जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी क्लास 10th में, जब आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस की गई थी, तो जब हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़े, साइन थीटा, कॉस थीटा, उनका एक रेशियो होता है p/h। अगर आपको मे भी याद हो तो उसके लिए जो है हमें एक राइम मेरे टीचर ने सिखाया था। आई थिंक आप सबने भी मोस्ट ऑफ यू ने सुना ही होगा। प्लीज रेज योर हैंड अगर आपने सुना होगा। तो मैं राइम बोलने जा रही हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। आई थिंक बहुतों ने सुना होगा। प्लीज रेज योर हैंड अगर आपने सुना है तो। और यू कैन मेक थम्स अप इन द चैट बॉक्स। ठीक, बढ़िया। यस, आमोद सर ने रिप्लाई है यस, दीपक सर यस, है ना। और इस रेशियो को हमने और भी डिफरेंट वे भी याद करने के लिए और भी डिफरेंट राइम्स भी सुनी होंगी, बट मुझे अभी ये वाली याद है, इसलिए मैंने जो है आपके साथ शेयर किया। एंड आई थिंक आप लोगों को भी याद होगा अगर आपने सुना होगा। तो ऑफकोर्स हम इस फैक्ट को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि राइम्स के थ्रू जब हम बच्चों को कोई कंसेप्ट देते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग तक बच्चों की मेमोरी में रहता है। इसके अलावा है अभी
मैं जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो फॉर्मूलाज जनरली मैं वहां पर मैं राइम्स का यूज करती हूँ, बिकॉज बच्चे फॉर्मूलाज में जो है काफी सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं. सो देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ नोन एज एम्पेरिकल रिलेशन. एम्पेरिकल रिलेशन जो है स्टैटिस में एक फॉर्मूला है, मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में एक रिलेशनशिप तय करता है, डिफाइन करता है. एंड दैट रिलेशन इज 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस मीन. 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन. अब इसमें बच्चे जो है कंफ्यूज होने लगे कि मीडियन लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, मीन लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, कहाँ पर 1 आएगा, कहाँ पर 2 आएगा, कहाँ. तो मैंने थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच है उनको लगाया. मैंने कहा कि आपको देखना है कि तीनों स्पेलिंग्स में से, मीन, मीडियन, मोड में से, तीनों स्पेलिंग्स में से किसकी स्पेलिंग जो है वो सबसे बड़ी है. ऑफ कोर्स मीडियन की स्पेलिंग बड़ी है, तो दैट मींस कि मीडियन जो है इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गर है. तो हम मीडियन को इक्वालिटी के एक साइड रखेंगे और बाकी दोनों को, क्योंकि वो दोनों से स्ट्रॉन्गर है, उनको एक साइड एडिशन में रखेंगे. वो दो मिलकर के मीडियन के बराबर. तो यहाँ क्लैरिटी मिले कि वन हैंड साइड पर जो है मीडियन को रखना है, while on the other side आपको मीन एंड मॉड को रखना. ठीक है ना. अब आता है नंबर्स की प्लेसिंग कि कहाँ पर 3, कहाँ पर 1 और कहाँ पर 2 आएगा. तो वहां पर मैंने बच्चों को बताया कि अगर आप मूवीज या शोज वगैरह देखते हैं, उसमें अगर थोड़ी जो हाई-फाई फैमिलीज है वहां पे अगर नोक झोंक दिखाया जाता है, दिखाया जाता है, तो यूज अ पर्टिकुलर लाइन अगेन एंड अगेन. वो एक लाइन यूज करते हैं बार बार, एंड दैट इज यू आर टू मीन. You are too mean. So mean is always with 2. Mean too mean. तो वहां से जो है too mean के साथ लिखा जाएगा, and mode के साथ में 1, और 1 plus 2 कितना होगा 3. तो इसीलिए क्योंकि इक्वालिटी है, भी दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तो इसीलिए 3 जो है वो मीडियन के साथ. तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बट ठीक है मैं इतना ही शेयर करूंगी. आप और इसको अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी, यही नहीं कि मैथ्स में और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी जो है आप इसको यूज कर सकते हैं. जब मैं मैथ्स में इसको यूज करती हूँ तो मैथ्स को मैं जो है एक टर्म देती हूँ, मैथमेटिक्स की जगह फिर मैं इसको कहती हूँ म्यूजिक. इट्स अ मैथ म्यूजिक स्ट्रेटेजी. Now what are the aim of doing all these strategies? Why we are adopting this strategies? What are the needs of these strategies? So it's just to create a logic way. Logic is a way of life. Learners can enjoy the mental happiness. So using logical thinking and reasoning power in dealing with their day-to-day experiences and issues. So जो है हम इन स्ट्रेटेजीज का यूज करते हुए हम जो है बच्चों में रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग को जो है डेवलप कर सकते हैं. बच्चे का जो एक इंटरेस्ट जो है खत्म हो रहा है मैथ्स को, डिसलाइक जो है आ रही है मैथमेटिक्स को लेकर के, उसको हम खत्म कर सकते हैं. एंड बच्चे का इंटरेस्ट जो है समहाउ अप टू कुछ लेवल जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं. Now, some application of mathematical tasks, and that is textbook exercises, problems, closed problems, solving sums, non-routine problems, open-ended problems, applied real-world problems, mathematical investigations, short open-ended problems. So these are a few applications of mathematical tasks. देखिए ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स में क्या है, जैसे हमारा जो रोज रहता है बच्चे से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं. व्हाट वी जनरली डू इज कि हम पूछते हैं ओके व्हाट इज 4 + 3, व्हाट इज 5 + 2, व्हाट इज 3 + 4, व्हाट इज 7 + 1. इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम जो है अपना अप्रोच चेंज कर दे. हम ऐसे पूछने की बजाय बोले कि 7 इज इक्वल टू व्हाट, 5 इज इक्वल टू व्हाट. Well, 7 is equals to what में आप देखिए आपके पास मल्टीपल आंसर्स आएंगे. some will say 3 + 4, कुछ बोलेंगे 5 + 2, कुछ थोड़ा सा और अपना ब्रेन अप्लाई करेंगे, देखें 10 - 3 is 7. और भी आप वेरियस ऑफ आंसर्स जो है बच्चों से आपको मिलेगा. तो we need to change the approach of asking questions from the students. So these are few strategies जो मैंने आपके साथ शेयर की. आई होप आप को अच्छी लगी होंगी एंड आप सब जो है इनको आप करेंगे अपनी क्लासेस में.
Now, why teachers hesitate to make learning of mathematics a joyful experience? Because कहीं ना कहीं जो है मेथोडोलॉजी में जो है वो प्रॉब्लम है, या टीचर्स की साइड से भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जिसकी वजह से जो है मैथमेटिक्स एक जॉयफुल एक्सपीरियंस बच्चों के लिए नहीं है. So this is a topic of discussion कि why teachers hesitate, क्यों hesitate कर रहे हैं. So in my opinion, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीचर्स को ये लगता है कि इन एक्टिविटीज के थ्रू क्या होना है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम एक एक्टिविटी करा देंगे, उस दिन बच्चे एक्टिवली रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, नेक्स्ट डे से फिर वही सेम हो जाएगा. हमें सिलेबस भी तो कराना है, हम सिलेबस कब कराएंगे अगर हमसे भी एक्टिविटीज कराते रहेंगे. तो हम तो नहीं करी थी, हमें किसी ने नहीं कराई थी एक्टिविटीज, हमें भी तो फ्री पढ़ाया गया था और हमने पढ़ लिया था. फिर अभी इन्हें इनकी जरूरत क्यों है, क्यों हमें एक्टिविटीज के थ्रू ही पढ़ाना है, क्यों नहीं हम जैसे पढ़ाए उस तरीके से पढ़ाना. बट माय डियर टीचर्स, कहीं ना कहीं इसकी जरूरत है. हमें कन्वेंशनल मेथड से हट के कुछ नई स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करने की जरूरत है. तभी जाके जो है हम आज के बच्चों की नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे, जिनके पास स्टडीज के अलावा बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जहाँ पर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पर उनको ज्यादा मजा आ रहा है कंपेयर टू देयर स्टडीज. सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू ask you कि what is your opinion about this, why, what you think that why अगर हम मैथमेटिक्स को छोड़ दें, हम नॉर्मली सभी सब्जेक्ट्स की बात करें, तो क्यों जो है हमारी लर्निंग जॉयफुल एक्सपीरियंस बच्चों के लिए नहीं है. प्लीज रिप्लाई, आपको क्या लगता है, क्या कमी है और क्या हम करना चाहिए. एनी सजेशंस? Okay, waiting for your replies. Please reply. Fear of failures, mindset, intervention, poor concept, and confidence. Yes, this reply is given by Adipak sir. Thank you, sir. Because ये भी reasons है, fear of failures है बच्चों के mind में, poor concept and confidence. यही concept and confidence जो है हमें build up करना है through different strategies. Amod sir, take it easy. Okay. Take it easy in what way? Okay, experiential learning, applied mathematics, promoting lateral thinking can play a good role. Thank you, sir, for your suggestion. Yes, experiential learning, of course. बच्चा जो है doing, हम कहते हैं बार बार learning by doing. ये कहीं ना कहीं जो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते. Of course ये जो है कि जब तक बच्चा करेगा नहीं वो सीखेगा नहीं. सिर्फ हमने जाके अगर बता दिया, कंसेप्ट बता दिया, वो जब तक उस चीज के अंदर में जाएगा नहीं वो नहीं सीखेगा. और अगर एक बार वो सीख भी गया तो वो कितने टाइम तक उसको अपनी मेमोरी में रख पाएगा, दैट इज ऑल्सो नॉट, हम इस चीज पे जो है नहीं गारंटी कर सकते कितने टाइम तक बच्चा जो उसको अपनी मेमोरी में रख. Yes, thank you for your suggestions and replies. So अगर हम एम की बात करते हैं, गोल्स की बात करते हैं मैथमेटिक्स में, तो हम ऑलवेज टू टाइप्स के एम्स की हम बात करते हैं. एक जो है दैट इज नैरो एम एंड द सेकंड इज इट्स वाइडर एम. नैरो एम में जो है हम जनरली बच्चों को कॉम्पिटेंसी सिखा रहे हैं, डिफरेंट कैलकुलेशन और अर्थमेटिक, ये सारी जो है डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज बच्चों को सिखा रहे हैं. अगर हम वाइडर एम की बात करें तो वहाँ हमें बच्चों के अंदर लॉजिकल, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना है. और इसकी डायरेक्शन में बहुत सारे काम हो भी रहे हैं. आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि नहीं हो रहे हैं. इसलिए बहुत सारी, जैसे हम लोग खुद ही सीसीटी प्रैक्टिस बच्चों को दे रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इन दिस डायरेक्शन. ओके, विद दिस आई वुड like to end this session. I hope you have enjoyed this session. और ये जो है आपके लिए enjoyment रहा, punishment ना रहा. So thank you all for your active participation. That's all from my side. Thank you. Okay, attendance जो है आपको WhatsApp ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा. From there you can
your attendance. क्या 1 घंटे का सेशन था मैडम? हेलो, Yes, sir. 1 घंटे का हुआ, 2 घंटे का चल रहा था। चलिए खैर, जॉयफुल लर्निंग हो गई मैथमेटिक्स की। जी सर। आज हम सब ने सीखा है कि मैथ्स को एक बोर सब्जेक्ट या टिपिकल सब्जेक्ट की तरह नहीं लेना है, कि मैथमेटिक्स भी एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जा सकता है, और पजल के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, स्टोरी टेलिंग के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, क्विज के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, या प्ले वे मेथड के थ्रू भी इसको पढ़ाया जा सकता है। तो आज हम सब ने ये सीखा। मैं दीपक जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स दें। दीपक जी, क्या क्लास में हैं क्या दीपक जी? चलिए, आप सभी के बिहार पे वोट ऑफ थैंक्स करिए दीपक जी। नहीं सही है सर, अब बोला जाए। वोट ऑफ थैंक्स, मैडम को वोट ऑफ थैंक्स कीजिए। श्योर 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 आई विल बी रियली indebted and thankful to you because you have helped me to overcome my phobia of maths. Right from the beginning, whenever I had to play with the numbers, it always appeared that the numbers were playing with me. But the way you started your session, it was quite absorbing and enriching. The way you presented your slides, the different concepts. Today, personally, I can say that it has opened a new world of maths for me. That's why I was actively participating in your discussion and replying promptly, because it not only inclined me towards the mathematics, but there was an intrinsic desire to find out and discover more and more. And I believe that if my teaching fraternity are going to apply these kinds of methods and approach with well-planned strategies, and if they are going to execute it in their classroom situations with varied needs of the diverse needs of the learners, the results are not going to be something beyond expectation, but it is going to be fantabulous. So I expect that my teaching fraternity, after this session of yours, will be highly benefited, and they are going to implement this even in their classroom situation. The way you brought the real life example, which can be used in the classroom situation, that can be extended, and it is not limited only to the boundaries of maths, but it can be even applied in the other subjects also. So we can take the concept, we can borrow the concept from such a intelligent personality like you, and we can apply this even in our classroom situations to make our learning environment very congenial for the children, where they can actively participate, and when students can even interact with the students, talking time can increase, and we can get involved into it, so that the desired output that we want in the term of the honing of the skills of the children, getting the concepts of the math, fostering the creativity and the critical thinking among the children, that can be harnessed as per the level of the today's standard and as per the level of CBSE as well as our prestigious institution. It was really worth listening to you, and without being biased, I can say that I was very lucky, fortunate enough to get the chance interacting with you. I wish you a very bright future, and please do help us whenever you get the chance by sharing your ideas through different means and methods. Once again, thank you very much, Sarita ma'am. Thank you, sir. Thank you for your praise. Thank you so much for your nice Thank you, ma'am. चलिए, ओके, अटेंडेंस लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, प्लीज आप वहां से अटेंडेंस मार्क कर दो।
Thank you. That's all for today's session.